So we're coming back that we have a loop. We have started the loop and we are going up to the last letter of the loop, right? Now I have checked if the name is equal to, name at I is equal to space. So this condition will be true at this place. Okay. Now if it is true, we will print what? We will print name at anchor, comma, and is equal to, I am putting a dot. Okay. So what am I writing here? I am printing the pointer, printing the letter which I was pointing in the beginning, right? I am pointing the letter which I was pointing in the beginning. Okay. The screen is not moving because I am writing still is coming still. Wait बच्चों एक मिनट. Okay, now you can see I've written this line. If name at I is equal to blank, it means if a space is encountered, that will be encountered after Ravi. So if the space is encountering, then we have to print the letter which we have targeted in the beginning, like anchor. So when Ravi will be over, then R will be printed. And what else we are doing? We are advancing the pointer as well. We are advancing the pointer as well. How can we do so? We are saying anchor is equal to I plus 1. Now this is the thing that we have to do. Then finally when it will come out of the loop, I'll print name and I'm saying I and colon, okay, lan of name. This is something new. I'm sure this you people have not seen. So this I'll explain. Okay. Now what is the meaning of this? Let's see. So what is happening? The name is, say, Ravikant Sharma. Okay. Now what is happening? Anchor is at 0. ANC is at 0. When space is coming, is this a space? No. Is this a space? No. Is this a space? No. No. Yes. Pointer was pointing, anchor was pointing to R. Right? When this space has come, we have printed name at anchor. So R has been printed with a dot because we are not terminating the line. Now anchor has been updated by the next position after the space. So anchor was initially 0, now it has become 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now it is pointing K. It is pointing K. Next time this condition will be true after Kant. Here. And anchor was pointing to K. So next time K will be printed with a dot. And anchor will be advanced. So it was at 5, 6, 7, 8, 9 and it will be at 10. It will start pointing to S. So there will be no space after Sharma. Then only RK will be printed. Now when you come out of the loop, what will happen? We will print name I, means from I we are printing all letters from I to
लेंथ मीन्स जो भी इसकी लेंथ है, जैसे इसकी लेंथ 16-17 जो भी थी, तो शर्मा पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा. सो दिस विल बी रविकांत शर्मा. नाउ थिंक फॉर अ सिनेरियो व्हेन देयर इज नो शर्मा, ओनली रविकांत इज रिटन. So if only Ravikant is written, then what will happen? Anchor will point to R first. When space will come, it will print R, and it will be advanced and it will start pointing to K. After Kant, there will be no space, so Kant पूरा का पूरा आ जाएगा. Similarly, Ravi में क्या होगा बच्चों? Anchor is pointing to this. There is no space, so anchor will be there at zero position only. And this will be printed, the whole name will be printed. ठीक है, जरा मुझे रिमाइंड कराने की कोशिश करो. Have I told you slicing in list? Slicing in list. So वही चीज स्लाइसिंग मैंने यहाँ पे की है. ये वाली जो स्लाइसिंग है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर कहीं पे किसी वेरिएबल में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, और अगर मैं लिखूँ प्रिंट नेम, small name, name, and I slice from 2 to 6, 2 to 4. Okay, so what will come? 0, 1, 2, 3, 4. 4 will not come, so M in P will come. Okay, so this I have told you. So same thing here also, we have printed the last word as it is by using slicing only. So same slicing can be applied in strings also. Okay, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. ये एग्जाम्पल भी मैं स्लाइसिंग जैसा ही ले रहा हूं. स्लाइसिंग नहीं, ये एंकर वाला मेथड यूज करके ले रहा हूं. हालांकि इसमें तो एंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं. चलिए देखते हैं फिर भी. एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. इनपुट अ वर्ड एंड चेक it is palindrome or not. ठीक है, ऐसा हमने लिस्ट में भी किया हुआ है. जैसे किसी का नाम है नमन, सो इट्स अ पैलिंड्रोमिक वर्ड. या फिर मलयालम, सो यू हैव टू चेक वेदर अ वर्ड इज पैलिंड्रोमिक और नॉट. लेट्स डू वन थिंग. ये मैंने शायद आप लोगों को लिस्ट में कराया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, दिस फॉर यू. आई एम राइटिंग इट एज अ होमवर्क. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले रहा हूं. क्वेश्चन ये है कि एक वर्ड लेना है हमको. ये हमें लेना है कैपिटल लेटर्स में. एंड इसको हमें इनक्रिप्ट करना है. और ये इनक्रिप्ट कैसे करना है? हमें इसमें करना है एक न्यूमेरिक की यूज करके करना है. वी हैव टू यूज अ न्यूमेरिक की, और तब हमें इसको इनक्रिप्ट करना है. अब ये इनक्रिप्शन का आइडिया क्या है? मान लीजिए जो वर्ड है ये है जैप, और हमें एक न्यूमेरिक की दी गई है जिससे हमें इसे इनक्रिप्ट करना है. ये सीजर इनक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम. इसका नाम सीजर इनक्रिप्शन है. ओके, ये जो न्यूमेरिक की है बच्चों, ये माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, तो हमें इसको इनक्रिप्ट करना है एक की से, और उसके बाद बताना है कि जो हमारा नया वर्ड है वो क्या बनेगा. तो मान लीजिए हम बात करते हैं कि जो n की वैल्यू है ये है +3. अब हमें बताना है कि नया वर्ड क्या बनेगा. तो मैं इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ. हालांकि काफ़ी बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे इसको, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ. A B C D
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से आप एक सर्कल में लिख लीजिए। और ए जो है ये 65 है, आप जानते हैं, ये 66 हो गया, ये 67 हो गया, ये 68 हो गया, 69 हो गया, 70 हो गया। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 90 है, ये 89 है, ये 88 है, ये 87 है, ये 86 है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है जैप को कन्वर्ट करना है +3 से। तो जैप का मतलब हुआ बच्चों 90, +3 का मतलब हुआ 1 2 3, तो ये बन जाएगा C। A को करना है +3 से, तो ये बन जाएगा D। और P को करना है +3 से, तो आई एम नॉट गोइंग विद द नंबर्स ओनली, सो दिस इज P 1 2 3 S। सो ZAP विल बी कन्वर्टेड टू CDS। आइडिया क्लियर है क्या करना है हमको इसमें? ओके, सबको क्लियर है या फिर से एक बार समझाऊं? प्लीज लेट मी नो, इज इट ओके और नॉट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ओके, वंस अगेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पासवर्ड रखा है, किसी को बताना है कि भाई मैंने जो है एक पासवर्ड रखा है, पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, से नेम, इट्स अ पासवर्ड नेम, और मैं चाहता हूं कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लोगों को पता चले, मतलब कोई इसको पढ़ ना पाए, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मैं इसको स्टोर करूं। तो मैंने क्या किया, इसको -3 से इनक्रिप्ट कर दिया, या -4 से या -5 से, या किसी से भी मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब मुझे देखना है नया वर्ड क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल आइडिया है बच्चों, n से पहले, माइनस है ना, तो n से पहले 3 लेटर्स निकाल लो पीछे। n ये हुआ 1 2 3, तो n बन गया k। a से पहले 3 लेटर, तो a z है, a जो है 65 होता है, उसके बाद z आएगा, सो 1 2 3 x बन गया, राइट। m से पीछे 3, 1 2 3 ये j बन गया, और e से पीछे 3, तो 1 2 3 ये b बन गया। तो ये हमारी इंक्रिप्टेड फॉर्म हो गई। नेम को हमने अगर -3 से इंक्रिप्ट किया है तो वो बनेगा KXJB। अब शायद आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा ये, ओके। अब हमें ये करना कैसे है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, आई डो नॉट नो वेदर वी हैव सफिशिएंट टाइम और नॉट। चलिए फिर भी लिखते हैं इसको। सो आई हैव एक्सेप्टेड अ वर्ड and I am insisting user to input it in capital letters. Although we can convert it into capital letter, there is a command upper by which we can do so. Enter a word in capital letters only. Okay, I am written this way. अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, word is equal to word dot upper. Okay. चेक कर लेना कि लेफ्ट में वर्ड आता है कि नहीं आता है, एक बार जस्ट चेक इट। सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। ओके, नाउ encryption is to be done, so I'm asking user to enter a key. So it's a number, so I'm converting it to integer. Enter a numeric key. Okay. Now, for I in range len of word. Okay. Now, अभी हमें क्या करना है, मैंने यहां पर एक CH लिया बच्चों, एक कैरेक्टर फॉर्मेट किया। कैसे किया? मैंने लिखा वर्ड एट आई। वर्ड एट आई का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से नेम। अब नेम की निकालते हैं आस्क की वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ORD, ऑर्डर, प्लस की। ऑलराइट, क्या मतलब हुआ इसका? नेम का जो भी आस्क की वैल्यू निकला, मैं एग्जाम्पल मुझे मालूम नहीं है सही बोल रहा हूं मैं, ऑब्वियसली गलत ही होगा, तो मान लीजिए इसका निकला 81, जस्ट फॉर एग्जाम्पल।
प्लस हमने इसमें इंक्रिप्शन किया है, मान लीजिए -3 का इंक्रिप्शन था, तो 81 प्लस -3, सो इट विल बी 78, राइट। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास जो रेंज है लेटर्स की, दैट इज फ्रॉम 65 टू 90। अब होगा क्या, कोई भी एक लेटर जो बीच में पढ़ रहा है, जैसे एन पढ़ रहा है, एन में आपने 2-4 जोड़ दिए, कोई भी की 2 या 4 या 5 जोड़ दी या घटा दी, वो फिर भी हमारी रेंज में ही रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? एन के साथ अगर हम 4, 5, 6, 8 कुछ भी जोड़ देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट मिडिल का लेटर है ये, तो ये अपनी रेंज में ही रहेगा, यानी ये 65 से 90 के बीच में ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ आएगी? ए के साथ। ए में अगर आप प्लस कर रहे हैं तो ये रेंज में रहेगा, +4, +10, +9, +4 जो भी है, तो ये रेंज में रहेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ माइनस करेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो ये रेंज से बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा इन द सेंस 65 से अगर हम -3 करेंगे तो ये चला जाएगा 62 पे, और 62 अल्फ़ाबेट नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ये 62 आया है तो यहाँ पीछे से 3 लेटर हमें पीछे आने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 स्पेसेस पीछे आने पड़ेंगे। पीछे का मतलब कितना हुआ? इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो हमें यहाँ से 90 से पीछे लाना पड़ेगा। ये इसका एक बेसिक आइडिया है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर वर्ड में जैसे नेम है, नेम की जगह जैप होता मान लीजिए, और जेड में हम प्लस करते +4, तो जेड 90 हो गया, +4 करके 94 हो गया। 94 कोई अल्फाबेट नहीं होता, तो हमें इसको इधर लाना पड़ता है ABCD की तरफ। तो हमें एक सर्कुलर मोशन, जो मैंने ये सर्कुलर अरेंजमेंट करना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, इससे आपको अपना काम करना पड़ता है। ऑलराइट, तो मैं उसी को यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर CH की वैल्यू, अब CH तो एक नंबर है, 65 से कम है। CH तो एक नंबर हो गया क्योंकि ये कन्वर्ट होकर के नंबर में बन चुका है। तो अगर CH की वैल्यू 65 से कम है तो हम ये देखते हैं कि 65 से कितनी कम है, राइट। तो मैंने यह लिखा temp इज इक्वल टू CH -65। ओके, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू कम होकर के 62 बन गई है, जस्ट फॉर दिस इंस्टांस 62 बन गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी बना है तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। CH छोटा है, उल्टा लिख दिया मैंने, हैव टू राइट दिस वे। अगर CH बड़ा है तो 65 बड़ा है, अगर तो 65 माइनस CH लिखना पड़ेगा। तो इसको हम घटाएंगे 91 में से और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कैर में, राइट। दूसरा लिख रहा हूं, इफ CH इज मोर देन 90 तो टेम्प कितना बना? तब टेम्प बनेगा CHR 90 से अगर ज्यादा है, तो मान लीजिए 92 है, तो हम क्या लिखेंगे? CH -90 मतलब 2 फालतू है, प्लस 64 लिख रहा हूं मैं इसको। अभी 64 कहां से आया? एक्चुअली 91 Z के बाद का है और 64 A से पहले का है, राइट। इसके बाद हम यहां लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई भी, NS इज इक्वल टू NS प्लस टेम्प, और बाद में हम प्रिंट कर देंगे न्यू स्ट्रिंग को, राइट। अब हमने केवल 2 ही कैटेगरीज को लिया है, जो 65 से कम है या 90 से ज्यादा है, लेकिन जो कैलकुलेशन के बाद अपनी ही रेंज में रह रही हैं, उनके लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, राइट। सो ये इसका एक कैलकुलेशन है। आई एम श्योर ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे क्लियर हो गया निरंजनी को? ये वाला क्लियर हुआ कि पहले वाला जो समझाया था वो क्लियर हुआ है? अच्छा, वो पहले वाला जो शायद मैंने जो एल्गोरिथम बताया था वो क्लियर हुआ होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब ये समझ में आ जाए, उससे पहले नहीं करना है बच्चों, जब उसके बाद समझ में आ जाए तो ये जो मैं इसमें लिख रहा हूं इसको भी चेक करना, पर पहले ऊपर वाला समझना। टेम्प इज इक्वल टू CHR, ये कुछ ऐसे वाला है, इफ CH इज लेस देन 65,
इस वाले में, एक इसका मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। पर इसको बाद ही में समझेंगे आप, पहले समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इफ सी एच इज लेस देन 65, NS is a new variable Astha, new string that can be initially blank, right? You can have NS as blank here, okay? So I'm adding every letter to NS. Oh, it's not necessary, although I've declared मैंने लिख दिया ऊपर. Okay, now check this. If CH is less than 65, temp is equal to char. It will be how much? CH plus 32. Okay? And if CH is greater than 90, so temp is equal to CHR CH minus 32. Okay, I'm just writing this. I'm not explaining that what is it. And rest NS is equal to NS plus temp. It will be like that only. जैसे पहले था वैसे ही रहेगा. Temp is equal to, no, NS is equal to NS plus temp. So it will be that format only. इसको आप बाद में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, और पहले वाले को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? Let me check I've written it right or not. चलिए इसको आप ट्राई करेंगे, देन यू विल टेल मी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. इट विल नॉट बी 32 आई बिलीव. पेन इरेजर, it will be 26 I think. You check and let me know, is it 26 or not, or it can be some other value also. 26 ही होगा मेरे ख्याल से. Yes, 26. 32 नहीं होगा बच्चों. Okay? Okay, what is CHR? Actually CHR converts a number into equivalent ASCII value. So if I say CHR 65, ये लास्ट टाइम समझाया था मैंने क्लास में. CHR अगर 65 है तो वो A हो जाएगा. ऐसे एक ORD भी है मन, वो भी देखा होगा तुमने. जैसे अगर मैं लिखता हूँ CH इज इक्वल टू ORD ऑफ 90, ओके, एंड आई से प्रिंट CH, so it will become Z. Okay? Aman, is it okay? So that's all for today. आज इसको इतना ही रखते हैं क्लास को. और जो भी रिकॉर्डिंग हुई है शेयर, और पुरानी वाली रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास. कुछ मशीन में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ. सो मैं जल्दी इसको प्रेजेंट करूँगा. चलो ठीक है बच्चों, दैट्स ओके टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I'll share this PDF so that you can at least see this work.